I welcome our गुरुओं के गुरु टैक्स एक्सपर्ट गिरीश आहूजा जी. नमस्कार सर. नमस्कार जी. नमस्कार. Speaker for the day. I welcome all the participants who are participating in this webinar. Today topic is Benami law, which will be basically discussed by our speaker Girish ji. Welcome sir. Over to you. Thank you Manoj ji. Thank you sir. Welcome sir. Can I start now? Sure sir. Good afternoon friends. Rahul sir. Sunil Dhameja ji, the convener of this circle, and of course Manoj ji. De facto मैं हमेशा कहता हूँ de facto chairman is of course Rajesh Agarwal ji, and all ladies and gentlemen. Sanjay Sharma ji is also there. Advocate Sanjay Sharma ji. Ladies and gentlemen, let me tell you this topic I have already discussed so many times. But there is some screen में कुछ आ रहा है, वो किसका है? Can we remove that? सर KM अग्रवाल. KM अग्रवाल को बोलिए ना कि इनको हटाएं अपने यहाँ से. मैं बोल रहा हूँ सर. हाँ चलिए. So this Benami law I have discussed several times, but since there is a demand, Mr. Rajesh Agarwal told me to do it again. Let me come to this. You know, as regards this act is concerned, we have the act earlier also, which was called as Benami Property Prohibition Act 1988. But at that time, what really happened was, no rules were framed. No authority were constituted to implement the Benami law. So that law was only on the paper. Before demonetization, rather I would not say before demonetization, rather the previous government, rather before 2014, came out with the idea that the old law, let us abolish the old law and bring a new law in lieu of that. Because that law was already on paper and nothing happened during that time. So the parliament said, what about the properties which have been acquired after 1988? If we are going to abolish that and bring a new law, what will happen to that? So that idea was dropped. Later on, this government again moved this saying, let us amend this law and bring more sections in it. When the original law was passed, there were only 9 sections. So an amendment act was introduced and which was passed and made effective from 1st of November 2016. November month was a very, remember that date of month, 8th November, demonetization took place. Before that, demonetization act was passed. Amendment were passed and they were incorporated. 63 amendments brought and they were incorporated in the original act. The intention of the government was very clear because this amendment was passed by 1st of November. That means they were aware at that particular time. They were aware at that particular time that they are going to bring demonetization because certain things relating to demonetization have been incorporated in this act. The first section, the name of the law was changed. The name of the act was earlier for Benami Property Prohibition of Benami Property Act. Now the name is Prohibition of Benami Property Act, Transaction Act. I would say Prohibition of Benami Transaction Act 1988 as amended by, I told you, on 1st November it was passed. Coming back now. Section 2 is always a definitions. You read any act, it is on definition. But I am going to come to you first for section 3. Section 3 says, no person shall enter into any Benami transaction. Full stop. This is 3 subsection 1. No person shall enter into Benami transaction. I'll give you the meaning of person transaction. But let me come to section 3 too. Whosoever enters into Benami transaction shall be liable to a penalty or a prosecution or both, but the penalty will be maximum maximum period of 3 years and or with fine. This was section 3.2. But in section 3.3 they said, look here,
those transaction, Benami transaction, which we have entered into on or after 1st 11/2016, the penalty shall be or the prosecution shall be as per chapter 7. 7 starts with section 53, 54, 55 of the Benami Property Act. So I'm dividing two parts. One, transaction which has taken place before 1/11/2016. There they can only impose penalty, or they may impose they may prosecute, and they may do both. But the maximum period of term of jail was 3 years and or fine. But with effect from 1st 11/2016, if any Benami transaction is entered, you will be liable for prosecution and penalty under chapter 7, which I'll talk to you last of all. Coming back, I said section 3(1) talks about no person shall enter into an Benami transaction. So person here does not mean individual. Person here means 6 categories of person, because local authority cannot do. In Income Tax Act, section 231 talks about the meaning of person, but they have taken 6. Who will not be allowed to enter into Benami transaction? Number 1, individual, HUF, firm, company, AOP, BOI, or any other artificial but juridical person. These 6 persons cannot enter into any Benami transaction. Coming to the next one, Benami transaction. But before Benami transaction, I have to give you the meaning of Benami property. What is Benami property? Benami property means any property. Please note the word. Any property which is subject matter of the Benami transactions and include the sale proceeds of that property. Please note 2 parts. Benami property means any property which is subject matter of Benami transaction and includes the proceeds of that property. Even if you have sold the property after 88, you have sold it, the proceeds of that property will also be called Benami property. Now, which since I use the word Benami property means property, I will have to give you the meaning of property also. Section 2, clause 26 talks about the meaning of property. It says property means, ye sunne wala hai sir, please listen to it carefully. Property means any asset, whether movable or immovable, tangible or intangible, corporeal or incorporeal, and includes any right, any information, any legal document, any instrument evidencing the title to or interest in that property. And if that property is capable of conversion into any other form, the property in that form also. Are you noticing a point? What a wide definition, completely covering everything, whether on the earth, above the earth, or below the earth. Everything. I said movable, immovable, tangible, intangible. You all know that. Corporeal, corporeally like tangible. Incorporeal is intangible. Then it says it includes any right, any interest, any legal document, any instrument evidencing the title to that property or interest in that property. And if that property is capable of conversion into any other form, the property in that form also. This is the meaning of property. I'm coming to you now, the most important meaning, and that is Benami transaction. What is a Benami transaction? Section 2, clause 9 defines a Benami transaction. Benami transaction means any transaction or an arrangement. Any transaction or an arrangement where the property is transferred to or held by a person and consideration of that property is paid or provided by other person. By and, it is not complete. And the property is for the immediate or future benefit, direct or indirect,
of the person who has provided or that consideration. एक एक वर्ड सुनने वाला है, ये मैं सेक्शन 29 की क्लॉज ए कर रहा हूं. Property means any transaction or any arrangement where the property is transferred to, let's say I transfer the property to Mr. Rajesh Agarwal or held by Rajesh Agarwal, held by him, but the consider the same is paid or provided by me. I give the consideration for that. I make the payment of that, but it is held in the name of Rajesh Agarwal. And there is and it is the property for the immediate or future benefit, whether direct or indirect, of the person who has provided that consideration. मतलब समझे कि I am the beneficiary. I have transferred the property to whom? To Rajesh Agarwal ji, or held by him, but consideration was paid by me. By me. I paid the consideration for that, or I paid the money for that. I provided the consideration for that. And that property is for my immediate benefit or my future benefit, direct or indirect. Then it is called a Benami transaction. लेकिन उसमें क्या माना जाएगा? राजेश जी बुरा मत मानना. उसमें माना जाएगा राजेश जी will be treated as बेनामीदार and I will be treated as beneficiary of that property. क्योंकि उनके नाम रखा वो बेनामीदार है. क्योंकि इसमें इंटरेस्ट मेरा है, बेनिफिट मेरा है, तो मैं बेनिफिशियरी माना जाऊंगा. क्योंकि ये बेनामीदार को भी डिफाइन किया है. बेनामीदार means a person or a fictitious person in whose name the property is transferred or held by, or in whose name the property is held, and includes the person who lends his name to that. तो वह बेनामीदार माना जाएगा अगर उसने अपना नेम लेंड किया, या मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, या वो हेल्ड बाय हिम एंड ही इज ए पर्सन, तो पैसा उसने प्रोवाइड नहीं किया, तो वो बेनामीदार होगा. सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैंने करी, हेल्ड बाय मिस्टर राजेश अग्रवाल और ट्रांसफर टू हिम. बट वेट, इसमें 4 एक्सेप्शंस है. देयर आर 4 एक्सेप्शन. Number 1 is property held in the name of Karta of Hindu undivided family. Karta or member of the Hindu undivided family. And it is for the benefit of the Hindu undivided family, provided the consideration is from known sources. Known sources. What happens most of the time? The property is not, the property in the of HUF is held in the name of Karta. It is held in the name of a Karta, or it is held in the name of a member. But that property is of HUF. The consideration is provided by the HUF from its known sources. I never said known sources of income. Known sources. The source may be anything. It may not be income in his hand. The HUF might have received a gift from member. Sources. This is the first exception. This will not be Benami transaction if it is held by Karta or member of the HUF. Number 2, property is held by a person in fiduciary capacity. Fiduciary capacity में property है. For example, let me tell you, trustee holds the property on behalf of trust. Executor holds the property on behalf of the deceased or the legal heir, rather legal heir. Next, beneficiary, like depository. You have the shares in the depository, in DMAT. Depository holds the property in the for the benefit of the shareholder, the buyer, the purchaser. This is also a fiduciary capacity. A partner holds the property on behalf of partner. If you have taken the firm, the name of a firm, partner, you name the property in the name of a partner of a firm. This is a beneficiary. He is holding it in fiduciary capacity. A company buys the property in the name of the director. The director is holding that property on the behalf of company. It is also fiduciary capacity. So if you are holding the property in a fiduciary capacity, as trustee, as DMAT, or as executor, as the partner of the firm, as what you call as a director of the company, or any other which may be prescribed, it is not a Benami transaction. Earlier, now please try to understand.
prior to 1st November 2016, if you hold the property in the name of your wife, in the name of wife, not spouse, wife, or in the name of unmarried daughter, that was not treated as Benami property. Holding the property in the name of wife or unmarried daughter. But now, from 1st November 2016, if the property is held in the name of spouse, the word is spouse. That means husband holds property in the name or by spouse, or by wife, or wives on behalf of husband. So now the word is spouse. Earlier the word was wife. So property held by the person as a spouse, or property held in the name of a child of the individual, spouse of the individual, or any child of the individual. I have used the word child. Earlier the word was unmarried daughter. I can keep the property in the name of my son, in the name of my daughter. The word child, don't be mistaken with minor child. Child can be major, child can be minor. Child is a child, is not minor or major. Child. Child can be married, child can be unmarried. Child can be adopted, child can be a natural child. Adopted also under a Hindu Adoption Act, adopted child. Child can be legitimate or child can be illegitimate also. Child is never illegitimate. Manoj ji मेरी तरफ देख के बोला ये क्या बोला है? Child is never illegitimate, Mohan ji. Manoj ji, child is never illegitimate. It is the relationship of the parents which is illegitimate. It is the relationship of the parent which is illegitimate. आपको तो पता है हमारी कंट्री में the children are born in nursing home and the father is born in a court. Father court में पैदा हुआ था. आपको याद होगा डीएनए से फादर पैदा हो गया. वो डीएनए कराया गया था और वो बाप मान लिया गया था. आपको तो पता ही है. तो उस चाइल्ड ने क्यों करा था? उसने ये करा था कि वो मेरा फादर प्रूव हो गया तो वो प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद मुझे मिल जाएगी, ऑल्दो आई मे बी इलेजिटिमेट चाइल्ड. वो तो बात अलग है. फिर उसने उससे शादी करा ली उसकी माँ से. लेकिन क्या हुआ? बेटे को फिर भी नहीं मिली. उसकी बीवी ने उसको मार दिया. आपने नोटिस किया? वो कुछ सबको पता है. प्रॉपर्टी किस्मत से मिलती है सर. प्रॉपर्टी भगवान ने देनी है, डेस्टिनी में है तो मिलेगी, नहीं तो ऐसी चीजें होती रही. लेकिन मैंने ये कहा चाइल्ड में भी लेजिटिमेट और चाइल्ड में भी इलेजिटिमेट. तो यू कैन होल्ड द प्राउड प्रोवाइडेड दिस इज अक्वायर्ड फ्रॉम नोन सोर्सेस. सोर्स मैंने बोला, इनकम नहीं बोला, क्योंकि मुझे हो सकता है इनहेरिटेंस में मिली हो प्रॉपर्टी, मुझे गिफ्ट में मिली हो. लेकिन if I hold that property in the name of my spouse or in the name of my child, it is not treated as what you call Benami transaction or Benami property. अब आया एक चौथा पॉइंट. एक्चुअली ये ज्यादा क्या कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए. गवर्नमेंट एम्प्लॉय कभी भी अपने नाम प्रॉपर्टी नहीं रखते और अपनी बीवी के नाम पे भी नहीं रखते, बच्चों के नाम पे भी नहीं रखते. मतलब जो अनऑथराइज्ड है, समझो, करो मेरी बात. वो क्या करते हैं अपने, दे बाई इन द नेम ऑफ ब्रदर, they buy in the name of sister, they may buy in the name of what you call grandparents, or may buy in the name of grandchildren, etc. अब क्या बोला है? ध्यान से सुनिए. Property held in the name of brother, sister, lineal ascendant or lineal descendant shall be treated as a Benami transaction unless you are the joint owner in that property. आपने अपने भाई के नाम जगह ली है, आपने कोई चीज ली है, सिस्टर के नाम ली है, लीनियल असेंडेंट के नाम ली है, लीनियल डिसेंडेंट के नाम ली है. असेंडेंट और डिसेंडेंट, डिसेंडेंट में बेटा तो आ ही गया, वो तो बाप, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ली है, या दादा के नाम ली है, दादी के नाम ली है. ये बेनामी मानी जाएगी जब तक कि आपका उसमें ज्वाइंट ओनरशिप, आपका नाम ज्वाइंट ओनर ना हो. सो प्लीज, अगर कोई गलती आप कर चुके हैं तो आगे से ध्यान रखिए. कोई भी प्रॉपर्टी आप अपने ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट के नाम लेंगे तो उसमें आपका ज्वाइंट नेम नहीं होगा, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी. ये 4 एक्सेप्शन मैंने दे दी. फर्स्ट एग्जेम्पशन HUF
property of HUF held in the name of karta or member. Second exception, in fiduciary capacity. Third, held in the name of spouse or child of the individual. And fourth, held in the name of brother, sister, lineal ascendant, descendant, provided you are joint owner. If you are joint owner, then it is not Benami. If you are not joint owner, it will become Benami. This is first definition, clause A. Now, second definition. Second is, Benami transaction is a transaction or arrangement in respect of a property where the Benamidar is a fictitious. Benamidar is fictitious. Fictitious है, इसका नाम exist ही नहीं करता बेनामीदार. कोई fictitious नाम से आपने ले ली, तो बेनामीदार is fictitious, तो वो भी बेनामी मानी जाएगी. तीसरी C clause, Benami property transaction means a transaction arrangement in respect of a property where the owner of the property says, I am not aware, it is not in my knowledge that I am the owner of that. ये करा है डिमोनेटाइजेशन के टाइम. आपने किसी के अकाउंट में पैसे जमा करा दिए in the name of employee, in the account of employee, in the name of a servant, and in the name of some other person, or maybe put up in Jandan account, or maybe any account. You have put it in the name of driver. Point is, if the driver says, I'm not aware, it is not in my knowledge that I am the owner of that property, so in that case, let me tell you what will happen. I tell you what will happen. It will be treated as Benami transaction. कईयों ने करे हैं और ये स्पेसिफिकली करा गया डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे. उनको पता था लोग किसी के नाम पे करा देंगे, एम्प्लॉय के नाम पर, किसी सर्वेंट के नाम पर, किसी मेड सर्वेंट के नाम पर, ड्राइवर के नाम पर और किसी के नाम पर भी करा देंगे. उन्होंने कह दिया अगर उसने स्टेटमेंट दे दी आई एम नॉट अवेयर, इट इज नॉट माई नॉलेज दैट आई एम द ओनर, तो उस केस में ये बेनामी ट्रांजेक्शन माना जाएगा. तो उसको पता ही नहीं है. ऐसे तो लोग बहुत करते हैं. हम तो पुराने जमाने में तो अधिकतर करा करते थे कि अपने बीवी के नाम पे पैसे जमा करा देते थे बीवी के अकाउंट में और उसको पता ही नहीं होता था. और क्या बीवी का अकाउंट भी खोलते थे, खुद ही साइन कर देते थे. अकाउंट भी अपने आप ही साइन करके कर दिए करते थे. एक दिन मेरे साथ भी हुआ था, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पहले. मैंने एक चेक साइन कर दिया बीवी का, और सॉरी मेरा बीवी का अकाउंट था, उसको कोई पेमेंट देनी थी. मेरी वाइफ वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने कहा ये चेक साइन कर. वो चेक साइन कर दिया तो वो डिसऑनर होके आ गया. ये क्या हुआ? सिग्नेचर डिफर. ये क्या हुआ? बाद में याद आया मेरी जो मैंने बीवी का अकाउंट खोला था उस पे उसने कभी साइन ही नहीं किए थे. साइन तो मैंने ही करके खोल दिया था वो अकाउंट. पहले जमाने में ऐसे ही होता था. अब तो खैर सारा कुछ हो गया, आधार कार्ड ये वो. पहले कौन से आधार कार्ड कौन से पैन होते थे. अकाउंट खोला और मैंने गुगी मारी और अकाउंट बीवी का खोल दिया और बीवी को बताते ही नहीं थे. तो इसी तरह आपने किसी का अकाउंट खोल दिया हो एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय को पता ही ना हो और एम्प्लॉय से साइन करा लिए हो कभी और उसने कह दिया आई एम नॉट अवेयर, इट इज नॉट इन माय नॉलेज, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, चौथी डेफिनेशन बेनामी. बेनामी ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट वेयर द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल. कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. आपने किसी ने स्टेटमेंट दे दी मेरे अकाउंट में कोई पैसे जमा करा दिए, मुझे नहीं पता किसने करा. सर जब आपके अकाउंट में आए थे तो आपने क्यों नहीं इसकी कंप्लेंट की? आप चुप करके क्यों बैठे रहे? इसका मतलब है आप कह दें मुझे नहीं पता सर किसने जमा करा दिए, मेरे अकाउंट में तो 1 करोड़ रुपया आ गया. वाह भाई वाह, आपके अकाउंट में 1 करोड़ आ गया, आपको पता भी है, लेकिन आपने कहा मुझे नहीं पता सर. ये भी बेनामी माना जाएगा. This will also be treated as a Benami transaction. So there are 4 cases of Benami transaction, 4 definition, A, B, C, D. In A, I told you 4 exceptions also. So these are the Benami transaction. एक explanation है, लीजिए मैं पहले वो भी बता दूं. ये expression insert करी गई नई में. क्या लिखा है? It is hereby clarified that. सुनिए क्या लिखा है. If a property, if there is a part performance of the contract under section 53 of the Transfer of Property Act. सुनिए क्या था. पहले क्या होता था, पोजेशन हम दे देते थे.
रजिस्ट्री नहीं कराते थे, कंसीडरेशन भी दे दिया, नहीं दिया, पर पोजेशन दे दिया, रजिस्ट्री नहीं कराए। और सारी पावर अटॉर्नी से काम होता था, सारी दिल्ली भी की हुई है पावर अटॉर्नी से, पावर अटॉर्नी से काम होता था। रुकिए, this will be treated as a benami transaction if there is a part performance of the contract under section 53 of the Transfer of Property Act where you have handed over the possession and no registry done. Please, it will be a benami transaction unless the following conditions are satisfied. Condition number 1, the consideration has been paid to the seller of that property. Consideration has been paid, but that property remains in the name of the seller. हमने उसको ट्रांसफर नहीं कराया, अब डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कराए, इट रिमेन्स इन द नेम ऑफ द सेलर। 2, स्टैम्प ड्यूटी, एप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी ऑन दिस प्रॉपर्टी हैज बीन पेड, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है। एंड 3, द एग्रीमेंट वाज रजिस्टर्ड, द एग्रीमेंट टू सेल वाज रजिस्टर्ड। ऑल द 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। 90% केसेस में एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं होता, ये बेनामी मानी जाएगी। Even if it is registered, you don't pay stamp duty. You don't get it pay. Now it is registered, you have to pay stamp duty. Earlier it was not that. Agreement should be registered, stamp duty must have been paid, and consideration has been paid, but it remains in the name of the seller. लोगों ने कहा फार्मर्स से प्रॉपर्टी खरीद रखी है, फार्मर्स में, क्योंकि कई जगह पे लॉ है, यू कैन नॉट बाई ए प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मर अनलेस यू आर ए फार्मर। उन्होंने फार्मर की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, पोजेशन ले लिया है, रजिस्ट्री नहीं कराई है, और रजिस्ट्री नहीं कराई है, पेमेंट भी दे दी है, लेकिन अभी भी उनके फार्मर के नाम कहता जी नहीं, ये बेनामी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी अनलेस एग्रीमेंट टू सेल इज रजिस्टर्ड एंड एप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी हैज बीन पेड। ठीक है, अगर अब आपने दे दिया और स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी तो ठीक है कि आपने पोजेशन ले ली है, लेकिन उसके नाम पर अभी है, कोई बात नहीं, वो बाद में रजिस्ट्री करा लेना, तो बेनामी नहीं मानी जाएगी। All the 3 conditions should be satisfied. That consideration has been paid, possession taken over, but it remains in the name of the ownership, remains in the name of the owner. 2, appropriate stamp duty, whichever is there, has been paid. 3, the agreement is registered. तब ये बेनामी नहीं होगी, नहीं तो बेनामी मानी जाएगी। तो सर, ये मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन के बारे में बोला। अगर मुझे कोई टाइम दो, अगर कोई इसको कर रहा है, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही लोगों को क्लियर नहीं है, तो आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। सो इफ देयर इज अ मॉडरेटर, ही कैन आस्क मी क्वेश्चन, और ही कैन पुट, उसको अनम्यूट कर दे जिसने डायरेक्टली पूछना है, नहीं तो मेरे से जो चैट में आए हैं वो पूछ ले, नहीं तो चैट मेरे सामने कर दे तो भी मैं कर लूँ। सर जैसे पहले 1 by 1 अनम्यूट कर दूं सर? हाँ कर दो, नहीं तो चैट है तो चैट दे दो। पहले ये कर देता हूँ, अनम्यूट कर रहे हैं? हाँ अनम्यूट कर रहा हूँ सर। अतुल चावला जी। हाँ जी, अतुल, 1 सेकंड सर। हाँ बोलिए बोलिए, मैं आगे तब बढ़ूंगा जब ये चीजें समझ में आ गई। अतुल चावला जी, आस्क योर क्वेश्चन। अतुल चावला जी, आपने कहा सर कि क्या नाम है, रजिस्ट्री इज अ बिग point to get yourself benami or not, but in Delhi and many other places sir, still the registries are not happening for मैंने आपको ये नहीं बोला रजिस्ट्री करानी है जी, मैंने कहा रजिस्ट्री नहीं कराई, पोजेशन ले ली। 2 कंडीशन और हैं। नंबर 1, एग्रीमेंट शुड बी रजिस्टर्ड, और आजकल तो दिल्ली में एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराते ही स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, कम देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। अगर तो वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड और स्टैम्प ड्यूटी मस्ट हैव बीन पेड। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये एक्सप्लेनेशन आई है 1/11/2016 से। अब कई लोग कहते हैं एक्सप्लेनेशन तो पुरानी डेट से लागू होती है 88 से, लेकिन मैं यहाँ डिफर करूंगा, ये 1/11/2016 के बाद लागू होनी चाहिए। तो इसके मतलब है 1/11/2016 के बाद कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। नंबर 1, एग्रीमेंट ऑफ सेल शुड बी रजिस्टर्ड। नंबर 2, दिल्ली में कराएंगे तो अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी भी पे होती है। एंड नंबर 3, पोजेशन ले लिया, लेकिन पोजेशन ले लेना है, नहीं पोजेशन लिया तो ओनर कैसे बनेगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी उसके नाम पर ही है जो ओनर था। ये तीनों कंडीशन कर दीजिए। 1/11/16 के बाद तो कभी मत करना। 1/11/16 के बाद पहले तो डिस्प्यूट है, मैं तो उसको मानूंगा वो नहीं है, लेकिन कई कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं। एक्सप्लेनेशन जो डाली गई है इसमें
क्योंकि अभी एक एक्सप्लेनेशन डाली गई सेक्शन 1023C में इनकम टैक्स में कि जो कॉर्पस डोनेशन होगा वो माफ होगा। पहले तो माफ नहीं करते थे, ये तो अभी एक्सप्लेनेशन डाली है। तो क्या पुराने केसेस में माफ कर देंगे? ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आगे से 1/11/2016 से कोई भी ट्रांजेक्शन की होगी तो हम जिम्मेवार नहीं है, वो बेनामी मानी ही जाएगी। समझ में आ गया जी? राम गुप्ता जी, आस्क योर क्वेश्चन। राम गुप्ता जी, हेलो राम गुप्ता जी, राम गुप्ता जी, हेलो। ये राम जी सुन लीजिए। एनीवे, संदीप गोयल जी, आस्क योर क्वेश्चन। संदीप गोयल जी। हाँ जी राजेश जी। बोलिए। सर ऐसा है कि आजकल जैसे पहले भी और आजकल कई बार ऐसा होता है कि पैसा उधार दिया किसी को, उधार देने में सिक्योरिटी के तौर पे एग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं किसी प्रॉपर्टी का। इन केसेस में वो जनरली एग्रीमेंट टू सेल कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता, तो इन केसेस में क्या होगा? पोजेशन तो नहीं लिया आपने ना? हाँ, पोजीशन नहीं लिया तो फिर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? अच्छा, मान लो बाद में वो पैसा पे नहीं कर पाता और प्रॉपर्टी के पोजीशन भी ले लेते हैं, तब लेना, तब रजिस्टर कर दो एग्रीमेंट। देखिए मैंने बताया ना, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पोजेशन हैंडेड ओवर होती है, पेमेंट दी जाती है। अगर आपने पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अभी पोजेशन नहीं ली तो आप वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए, एग्रीमेंट टू सेल वगैरह जो करना है, नहीं तो बेनामी मानी जाएगी। अच्छा, लेकिन बोरोवर तो कभी भी सामने कॉर्पोरेट नहीं करेगा इसमें तो ये तो फिर आपको सोचना है ना, लॉ तो लॉ ही है। तो आपने मॉर्गेज कराओ प्रॉपर्टी, फिर तो ठीक है सर, फिर तो मॉर्गेज होती है। आपने तो अनऑथराइज्डली कर रखा है, वो तो आप सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो वो अगर साइन करके दे रहा है, ज्यादा समझदार होगा तो वो ये करेगा, तो समझदार नहीं होगा वो तो। चलिए सर आगे। विवेक जी, आस्क योर क्वेश्चन। विवेक जी। नहीं, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। अच्छा, आपने हैंड रेज कर रखा है ना सर? हैंड रेज करते हैं, कई बार कईयों ने कर रखा होता है। रसिक जी, आस्क योर क्वेश्चन। रसिक जी, बेटर है सर मैं क्वेश्चन पढ़ ही लूं। मैं पढ़ दूंगा वो तो, अगर चैट में है तो मैं पढ़ दूंगा। पढ़ लो सर, चैट में सर ले लो आप, चैट मैं ले लेता हूँ, डोंट वरी। मुझे आने लग गया, समझ में आ गई है सब कुछ। सर चैट में ले लेता हूँ, लीजिए अभी ले रहा हूँ, ले लो सर। स्टार्ट करता हूँ। ये गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, ये तो पता नहीं कैसे आ रहे हैं। आगे चलता हूँ। I'll take the question. सर एंड से शुरू कर लो। चलो ऊपर से अब आ गया, नीचे कर दिए मैंने। आ रहा ठहरिए एक सेकंड बस। काफी चैट तो वही है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कोई नमस्कार कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई होल स्क्रीन कर रहा है। प्लीज डू रीड राजेश जी। अब आया पहला क्वेश्चन। आई हैव ए क्वेश्चन ऑन बेनामी ट्रांजेक्शन। सपोज कंपनी ए गिव्स ए कंपनी बी exclusive right to use its brand and company B incurs marketing expenses for promoting that brand. Will this transaction amount to benami transaction? मैं समझना नहीं आया। आपने जब राइट दिया उसको यूज करने के लिए, तो आपने राइट अक्वायर किया था, मूवेबल इमूवेबल, आपका ये कहने का है। उसका बेनिफिशियरी कौन है? अगर बेनिफिशियरी वही है तो ठीक है। अगर बेनिफिशियरी आप हैं तब होगा ना, अदरवाइज आप किसी को लोन देते हैं तो वो दीजिए। अगर आपने इसको लोन पे दे दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ स्पाउस, चाइल्ड, जनरली पीपल गेट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ वाइफ और इन द जॉइंट नेम, विल इट बी बेनामी? मैंने बोल तो दिया कोई बेनामी नहीं है। स्पाउस के नाम पे हो, चाइल्ड के नाम पे हो, कोई बेनामी नहीं मानी जाएगी। इज मटीरियल maternal grandfather और grandmother a lineal ascendant? यस, लीनियर असेंडेंट होते हैं। आप हमेशा हिंदू लॉ देखते हैं, लॉ हिंदू के लिए नहीं बना है, सबके लिए बना है। मुस्लिम के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, सबके लिए। द प्रॉपर्टी बॉट इन द नेम ऑफ ब्रदर बट फ्रॉम नोन सोर्सेज वेदर बी ट्रीटेड एज बेनामी? सर्टेनली इट विल बी ट्रीटेड एज बेनामी, क्योंकि ये जॉइंट नेम पे नहीं है। आपका नाम जॉइंट होना चाहिए, चाहे आप सोर्स प्रूव कर दो ये बेनामी है जब तक जॉइंट नेम पर ना हो। आपका नाम बीच में डाला हो, चाहे 1% डाला हो, तो भी दिखेगा। Is Benami Property Act applicable on property acquired before enactment of 2018? 18 कहाँ से आ गया यार? Is the law applicable from 1988? 1988, और ये 2018 नहीं, 2016 से आया था। Applicable है 88 से। वो कहते हैं all question after deliberation। मैं इसलिए ये ले रहा हूँ, ये इमीडिएट के लिए हैं।
लोग फिर रह जाता है, फिर मैं लूंगा बाकी चीज. If we give loan to our brother and from that money property has been purchased, is this property comes under definition of benami? No. लोन दिया है आपने, लोन तो आपने अपने नाम पे थोड़ी ली है, आपने तो लोन दिया है, तो नो, इट इज नॉट. आगे, if shareholder unsecured loan provider untraceable due to not provided confirmation notice under can AO can treat this as benami? देखिए Yes. AO ने नहीं ट्रीट करना, ये बेनामी लॉ के अंडर अलग आएगा. AO तो 68 लगा सकता है, 69 लगा सकता है, AO थोड़ी बेनामी करता है. AO तो 69 A B C लगाएगा. हाँ, बेनामी वाले अलग ले लेंगे एक्शन, वो अलग है, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी इज इन एडिशन टू and not derogation of any other law which is in force. तो वो बेनामी, वो AO का काम नहीं है बेनामी लाना. AO तो बेनामी वाले को रेफर कर देगा, इसका काम नहीं है. वो 68 69 लगा सकता है. POA property shall not be treated as benami because money provider and beneficiary both are same. ये किसने कह दिया सर? ये नई बात सुनने में आया, ये पहली बार मैंने सुना है. ये जिसने ये क्वेश्चन पूछा है कि बेनामी प्रॉपर्टी में पावर अटॉर्नी उसी के नाम पे होती है जिसके नाम पर जिसने पैसा दिया. अरे भैया ये गलत है, ये कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होती. पावर अटॉर्नी किसी और के नाम दी जाती है और एग्रीमेंट टू सेल आपके नाम पर होता है. पावर अटॉर्नी का तो मतलब ये है कि कल सेलर नाम आने तो आप उससे ट्रांसफर करवा लें. आप अपने नाम पे पावर अटॉर्नी कैसे ले सकते हैं? ये तो पहली बार सुना, ये नई चीज है. पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और के नाम ली जाती है. आप अपने भाई के नाम, इसके नाम, किसी के नाम ले लो. क्या होता है कि आगे अगर सेलर मुकर जाए तो पावर अटॉर्नी से, वो पावर अटॉर्नी से मैं यहाँ पे आप ट्रांसफर कर लूं. आप अपने आप को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो पावर अटॉर्नी किसी और के नाम होती है. ये क्वेश्चन गलत है, जिसने ली आगे से ध्यान रखना, ऐसा काम कभी पावर अटॉर्नी में नहीं होता है. ये गलत तरीका है. एनी अदर क्वेश्चन देख रहा हूं. If property in the name of child is not benami, but in the name of lineal descendant is benami. मैंने बोला ना, lineal descendant में child छोड़ दो, grandchild भी आते हैं, grandchildren आते हैं. So child को तो छोड़ दिया, grandchildren के नाम पे नहीं ले सकते. आगे लिखता है, TDS on property purchase deposited but seller is not ready for registration in buyer name. Possession is also given. इससे इसका क्या लेना देना बेनामी का? ये तो कोई और dispute है. Property purchase on unregistered builder buyer agreement in Delhi. Consideration paid, possession taken, builder expired and is legally declined to get sale deed registered. What will be this status? आप भैया, आपके पास एग्रीमेंट टू सेल होना चाहिए था, अनरजिस्टर्ड में कैसे ले लिया? पोजेशन आपने ले ली है कि नहीं ली है? पोजेशन ले ली है तो केस फाइल करिए उसके ऊपर. प्रॉपर्टी परचेज ऑन अनरजिस्टर्ड बायर एग्रीमेंट इन दिल्ली 90 में कंसिडरेशन पेड, पोजेशन टेकन, बिल्डर एक्सपायर. मैंने बता दिया आप. If agreement to sell is cancelled subsequently, then how to get the stamp duty refund? ये भैया स्टैम्प ड्यूटी वालों से पूछिए. लेकिन एग्रीमेंट टू जब रजिस्टर हो जाता है तो आजकल उसके पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो पोजेशन दे रहा है. अगर पोजेशन नहीं दे रहा तो फिर वो क्या हो? सर, if a person resides in the house since 1990 and only power of attorney is made and consideration is made at that time, so is there any issue now or near future? मैंने आपको बोला ना, एक नवंबर 2016 के बाद तो मत करना. जो पहले हो गया पाप वो छोड़ दीजिए. टोकन अमाउंट फॉरफिटेड इज आल्सो बेनामी. जी नहीं, अमाउंट फॉरफिटेड कैसे बेनामी हो गया? प्रॉपर्टी परचेज एंड एग्रीमेंट साइन. अरे छोड़िए सर. वेदर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज आल्सो कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्यों, क्या खास बात है भाई? रूरल एग्रीमेंट नहीं होगी. यहाँ लिखा प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी. ये कोई कैपिटल एसेट थोड़ी है. कैपिटल एसेट में रूरल नहीं आता. प्रॉपर्टी में तो सारे आएंगे, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल. सर, एग्रीमेंट टू सेल विल बी ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम इन केस ऑफ लोन ट्रांजैक्शन? मैंने आपको बोला ना, अगर पोजेशन ले लेंगे तो होगा. गिफ्ट गिवन बाय सिस्टर टू ब्रदर टू परचेज प्रॉपर्टी इज बेनामी. नो 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 बेनामी ट्रांजैक्शन. अगर गिफ्ट आ गया तो वो तो फिर बेनामी किस बात का हुआ? गिफ्ट तो होती विदाउट कंसिडरेशन है. गिफ्ट में तो ट्रांसफर माना ही नहीं जाता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. सर, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लाल डोरा आर आल्सो कवर्ड. एवरी प्रॉपर्टी इज कवर्ड वेदर लाल डोरा और रूरल और वेट एवर. देयर वाज अ जॉइंट प्रॉपर्टी, फादर एंड हिज ब्रदर, एंड सेम हैज बीन गिफ्टेड टू सन बाय फादर. वेदर दिस विल बी अ बेनामी? नहीं. अंकल आल्सो ट्रांसफर द शेयर. कैसे बेनामी होगी भैया?
ये गिफ्ट कर दिया आपने, सेक्शन 56 में आपको पता है कि आप रिलेटिव से गिफ्ट ले सकते हैं, ठीक है, आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ी होगी, और कई जगह वो भी नहीं है स्टैंप ड्यूटी, तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। If mother holds property since 2000 and transfer her property to her son through will, then it is बेनामी। कैसे बेनामी हो सकती है यार, विल में तो आती नहीं, विल ट्रांसफर ही नहीं होती, विल में प्रॉपर्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Dear sir, could you please explain concept of power of attorney with service बेनामी transaction? अरे यार बता तो दिया power of attorney, अब तो बता दिया मैंने। Second hand BMW car purchase but RC not transferred, whether बेनामी? देखिए कई जगह लिखा हुआ है कि अगर कार की पोजेशन ले लो, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप ओनरशिप मान ली जाती है, आप उससे लेटर ले रखा है, तो अगर वो परमानेंट ही नहीं कराओगे, 2-4 महीने नहीं करा सके तो अलग बात है, तो वो तो समझ जाएंगे, तो इन्होंने सिर्फ पोजेशन ले रखी है और रखी BMW कार उन्हीं के नाम पर, फिर तो पकड़े जाओ। अगर वो 1-15 दिन हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन करी, बेनामी ले ली, पैसे दे दिए और अभी रजिस्ट्री नहीं कराई, तो कुछ टाइम पीरियड होता है, तो नहीं। गिफ्ट रिसीट फ्रॉम सिस्टर कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ बोगस शेयर कैपिटल एडिशन कैन बेनामी यूनिट, बोगस शेयर कैपिटल पहले तो 68 में जाएगा, फिर बेनामी लॉ भी आ जाएगा। इन केस ऑफ बिल्डर बायर एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो अगर आपने जब तक, आजकल तो रेला लग गया, जब तक पोजेशन नहीं लेते और रजिस्ट्री नहीं कराते तो कोई दिक्कत ही नहीं, पोजेशन लेने के बाद ये बेनामी बन जाए। इन माइंड दैट इनकम टैक्स अथॉरिटी एओ शैल बी अथॉरिटी, इज इट करेक्ट? अरे ठीक है सर, लेकिन वो अथॉरिटी को अलग डेजिग्नेशन दिया हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी में नहीं आता, वो एओ नहीं होता, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर होता है, वो मैं बताऊंगा। प्रॉपर्टी गोट अंडर विल फ्रॉम फादर बट इन पोजेशन ऑफ ब्रदर ड्यू टू डिस्टेंस, ड्यू टू डिस्टेंस का क्या मतलब? अरे आपके नाम पे है ना, आप ब्रदर आपका रहता है तो क्या हो गया, नाम पे तो आपके, मैंने पोजेशन क्या बात, आपके नाम है तो क्या हो। गिफ्ट रिसीट फ्रॉम सिस्टर, अरे यार बार बार एक ही सवाल बोलते हैं, आपकी बहन बड़ी अच्छी है जो आपको गिफ्ट दिए जा रही है। 5वां सवाल है गिफ्ट रिसीट फ्रॉम सिस्टर, अरे लो ना, कौन मना करता है, बहन को दो ना, बहन से लेते क्यों हो? गिव इट टू सिस्टर एंड नॉट टेक फ्रॉम सिस्टर माय डियर, ये बेनामी नहीं होती गिफ्ट। ड्यू आइडेंटिटी ऑफ परचेजर इन मस्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जी नॉर्मल कोर्स में तो जीएसटी लॉ में तो आपको पता है कि वो कैश में वो कितने अमाउंट की कट सकती है, बाकी क्या होगा। If agreement to sell is cancelled, मेरे को ये नहीं देना। It is hard that property purchased in the name of pet dog and cat, ये अमेरिका में ज्यादा होता है, आपके यहाँ नहीं होता है। पेट डॉग के नाम अपना नाम भी डाल लेना, तो फिर बेनामी नहीं होगा। आप तो इतने प्यारे हैं कि पेट डॉग को देते हैं, यार मेरे को ही दे दो, यार मेरे को दे दो, क्या चीज है, पेट डॉग के नाम पे, बिल्लियों के नाम, कुत्तों के नाम पर लोग परचेज करते हैं। अरे भैया ऐसे मत करो। अगला पॉइंट, Sir, can unclaimed and old unsecured loan due to death of the depositor can be termed as benami? जी नहीं, unclaimed है तो आप इनकम टैक्स दे दो ना, इसके ऊपर दे दो ना उसको, वो 41(1) में, तो बेनामी कहाँ से हो जाए। लेकिन देख लेना, जेन्युइन होने चाहिए। डू कवर्ड इन बेनामी, डू आइडेंटिफाई। और चलिए सर, कैन अनक्लेम्ड ओल्ड अनसिक्योर्ड लोन्स ड्यू टू, ये हो गया, ये तो गिफ्ट रिसीव फर्स्ट, ये यार इसको बताओ सर, ये बार बार गिफ्ट रिसीव सिस्टर से कर रहा है, कितनी प्रॉपर्टी खरीदेगा सिस्टर से मेरे भाई। और एक हमारे जेंटलमैन है संजय शर्मा जी, सर लेट के नहीं, सर कुर्सी पे बैठिए, ये लेट के काम नहीं चलेगा संजय जी, कुर्सी पे बैठिए, ये पेट बाहर नहीं निकालना है, ना आपने घर से बाहर जाना है ना पेट बाहर निकालना है। तो संजय जी कुर्सी पे बैठ गए। चलिए अगला बोल रहा हूं, What will be happen to right a person who has purchased property bona fide which was benami property as per the present law? गए, आप ले ही नहीं सकते बेनामीदार से वापस, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, वो कन्फिस्केट कर लेगी और प्रोसिक्यूशन भी करेगी। प्लीज नोट, ये रूल है कि बेनामीदार को एक बार दे दी तो आप उससे वापस ट्रांसफर नहीं करा सकते, उससे ले नहीं सकते, उसके अगेंस्ट सूट भी फाइल नहीं कर सकते। वेदर प्रॉपर्टी वेस्टेड थ्रू विल ऑफ अनरिलेटेड पार्टी, विल तो कोई भी कर सकता है यार, आप मेरे नाम पे विल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विल इज नॉट ए ट्रांसफर, वो नहीं मानी जाएगी बेनामी। शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कंपनी बाय सेलिंग ज्वेलरी, इफ कैपिटल गेन ज्वेलरी इज क्वेश्चन बाय एओ एंड एडिशन मेड वेदर शेयर आर रिक्वायर्ड कवर्ड अंडर बेनामी लॉ। अरे भैया मैंने आपको बोला आपको 68 लगेगा, आप ही का पैसा है और आप ही करेंगे तो 68 लगेगा, बेनामी तो बाद में देखेंगे अगर ये प्रूव हो गया कि किसी और का। कंसिडरेशन पेड, पोजेशन टेकन, स्टैम्प ड्यूटी, पेपर परचेज, possession given by seller
TDS on property purchase deposited, तो आपने कर दिया ना, आप रजिस्ट्री भी तो कराई, एग्रीमेंट टू सेल भी तो रजिस्टर करा हुआ है, पोजेशन अगर ले ली है तो कर दे. What is the meaning of the word alienate? Alienate होता है to transfer, to dispose of, to gift away, to do that. That is alienate. Auditor required disclose बेनामी transaction और बेनामी property in financial statement. आने दीजिए, शायद ये रिपोर्ट में आ जाए. Property purchased in a company through accommodation entry via share capital. Then what is the बेनामी property? भैया 68 पहले लगाएगा और वो आपको टैक्स कर देगा शेयर कैपिटल पे. और फिर अगर आपने कह दिया ये तो मेरा है, सरेंडर कर दिया, तो फिर आपको बेनामी में ही ले लेगा. आप क्यों सरेंडर करते हैं? वो आपको ये मेरा नहीं है, उसने दिया था, तो वो पकड़ो, उसको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ो? ऑडिट अगर ये प्रूव हो गया कि आपने पैसा दिया था उसको खरीदने के लिए शेयर कैपिटल, तो उस केस में बेनामी भी लगेगा. 68 तो लगना ही लगना है. ऑडिटर रिक्वायर्ड डिस्क्लोज बेनामी हो गया. कार इन द नेम ऑफ डायरेक्टर, ऑल पेमेंट मेड बाय कंपनी, ये बेनामी नहीं होगी, नहीं होगी. बोगस शेयर कैपिटल इन अपील, एन एसएससी वांट्स टू अवेल विवाद से विश्वास. अरे अब मैं विश्वास से विश्वास का जवाब दूं कि बेनामी लॉ का दूं, वो बाद में करेंगे विश्वास से विवाद का. चलिए आगे आगे चलिए. What is the status of the commercial property of that owner of Rajendra Place where only transfer happens to builder books? एक ही बात है, ट्रांसफर तो हुई ना, तब रजिस्ट्री नहीं हो रही थी. हमारे यहाँ अपार्टमेंट एक्ट नहीं था पहले, अपार्टमेंट एक्ट नहीं था, रजिस्ट्री आपके नाम पे आपको ट्रांसफर कर दिया, मेंबर आप बन गए, कोई बात नहीं. सर वन परचेज इन द नेम ऑफ ट्रस्ट, एओपी, ट्रस्ट के केस में बेनामी लॉ नहीं लग रहा आजकल. एनी ट्रांजेक्शन विच इज नॉट कवर्ड अंडर बेनामी लॉ रिलेटेड टू एसेट, अरे बताया ना ट्रस्ट के केस में नहीं लग रहा. कोर्स ऑफ रेमेडी फॉर बेनामी प्रॉपर्टी परचेज बाय बोनाफाइड बायर, कोर्स ऑफ रेमेडी क्या है? वो तो बेनामी ट्रांजैक्शन लग गया तो आप फंस जाएंगे और क्या होगा. A has been allotted a flat in Dwarka Housing Society. A sold allotment letter to B, but is still member in the record of Housing Society. Installment is being paid in the name of the A or B. देखिए जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी होती है उसमें आपका मेंबरशिप ट्रांसफर होता है और बायर को दिया जाता है, तभी वो ट्रांसफर माना जाता है, नहीं तो ट्रांसफर नहीं माना जाता. When property registered in the यार ठहरिए, if I gift it to sister, अरे यार अब सिस्टर को गिफ्ट दे रही. When the property registered in the name of relative, consideration paid through the account of relative and declared in income tax, but held and being used by other person, यार वो चीज अलग है. यूज्ड करना, ओनर तो नहीं हो आप यूज कर रहे हो, रेंट नहीं दे रहे या दे रहे हो, that is a different thing. वो बेनामी नहीं होता. How can we make sure whether a property purchased by us is not a बेनामी property? ये बाद में बताऊंगा क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने भी कहा था, वो बाद में आएगा जब सेक्शन, तो बताऊंगा, ये सेक्शन आएगा तो बताऊंगा. बस हो गया, आगे चलूं. नाउ प्रोसीड फर्दर. ओके सर, आई एम कमिंग बैक. अब देखिए ये मैंने सारी डेफिनेशंस आपको बता दी. अब आया कौन कौन सी अथॉरिटीज बनी हैं. एक का नाम है इनिशिएटिंग ऑफिसर. इनिशिएटिंग ऑफिसर इज the joint commissioner of income tax, additional commissioner of income, no, sorry, the initiative officer is an officer who's designated for that purpose. Joint commissioner, additional commissioner को बोलते हैं approving authority. Initiating officer is the assisting income tax officer who has been what he called nominated, who has been officiating as. ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं कि ये इनिशिएटिंग ऑफिसर होंगे. हर जोन बना दिए हैं, इंडिया में 24 जोन बना दिए गए और इनिशिएटिंग ऑफिसर को वहां पर डेजिग्नेट कर दिया है बाय नेम. या तो टीडीएस वाला ऑफिसर है या कोई वो इनिशिएटिंग ऑफिसर. अप्रूविंग अथॉरिटीज कमिश्नर अपील और जॉइंट कमिश्नर अपील हु हैव बीन डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पस. यहाँ भी डेजिग्नेट कर दिए गए हैं और नोटिफाई कर दिए गए हैं और इनिशिएटिंग ऑफिसर भी नोटिफाई कर दिए गए. नेक्स्ट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अभी तक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेनामी लॉ में नहीं बनी है और वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो पीएमएलए में है, वो क्या है, क्या नाम बोलते हैं उसको, कौन सा वो है, व्हाट यू कॉल यार, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1982, पीएमएलए. पीएमएलए में वो पीएमएलए की जो अथॉरिटी है वही ये देखेगी ये काम अभी तक. दिस इज कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. एडजुडिकेटिंग के बाद ट्रिब्यूनल, अपीलेंट ट्रिब्यूनल, ये भी अभी नए नहीं बनाए गए. जो पीएमएलए के ट्रिब्यूनल हैं
वही ये काम करेंगे और दिल्ली में ही है वो। उसके बाद स्पेशल कोर्ट तो तब आएगा जब प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगी, ये अथॉरिटी है। आइए अब सेक्शन 24 में जा रहा हूं। वेयर द इनिशिएटिंग ऑफिसर has information in his possession. Who is initiating officer? That officer who has been designated by the government for this purpose. And where the initiating officers has information in his possession, material in his possession, and reasons to believe that such and such person, such and property is a Benami property. Such and such property is a Benami property. He may issue a notice to the Benamidar to show cause why this property be not treated as Benami property. मैंने क्या बोला? Section 24(1) में the initiating officer जो initiate कर रहा है, मैंने कहा वो designated है इस पर पे officer जो assessing officer या income tax officer जो है designated है. Now वो assistant commissioner of income tax normally designated हुए. Now, if he has information material in his possession and reasons to believe that such property is a Benami property, then he may issue a show cause notice, a notice to the Benamidar to show cause why this property be not treated as Benami property. ये notice गया show cause का कि 30 दिन में जवाब दीजिए within the time specified in the notice. अब subsection 2 कहता है 24B that the copy of this show cause notice shall also be sent to the beneficiary if beneficiary is known or he can be identified. तो beneficiary के पास copy जाएगी और show cause जाएगा. अगर beneficiary पता ही नहीं है तो आप किसको भेजें? If the beneficiary is known or identifiable तो उसको copy भी भेज. Show cause notice. अब क्या होगा? In the meantime उन्हें जवाब देना है. But the initiating officers has reasons to believe and he's satisfied that this person जिसको मैंने notice दिया है will try to alienate his asset. Alienate his asset. Alienate होता है to dispose of, to surrender, to gift away, to transfer. वो alienate कर देगा. उसके reason to believe है. So he can take the prior approval of the approving authority. कौन है approving authority? Designated additional commissioner or joint commissioner. कि approval दे दो. Kindly allow me to attach this property provisionally. और वो property को provisionally attach कर देगा. जब property attach होती है तो होता है not to deal with, not to part with, not to do anything that property without the permission of the initiating officer. ये property उसने provisionally attach कर दी. But this attachment will be valid for a period of 90 days. 90 दिन तक attach कर सकता है. Now आप जवाब देंगे. आपने अपना जवाब दिया. You have replied that. उसको आपको hearing देगा. Initiating officer. And after after considering your reply and giving you hearing, he has to now decide. Within 90 days, he has to decide whether this property is Benami or not. If he thinks it is not Benami, तो कोई problem नहीं है. वो attachment lift कर देगा और proceeding drop कर देगा. अगर उसे 99% करनी नहीं, उसके पास information possession में है. लेकिन if he is satisfied that it is a Benami transaction, then he will prepare a report within, अभी final नहीं हुई है, उसको पता लगता है कि है, he will prepare a report and within 15 days of that, after passing an order, he will refer the case to the adjudicating authority. 90 दिन में decision लेना है, अगले 15 दिन में report बनाकर refer कर देनी है adjudicating authority कि according to me this is Benami transaction. आइए 24 section खत्म हुआ. 25 है कि notice कैसे दिया जाएगा. वो लिखा है कि आपको notice by hand भी दिया जा सकता है, under civil code भी दिया जा सकता है, online भी दिया सकता है. That is a different thing. अब आइए 26 section में. अब role adjudicating authority का आ गया. ये adjudicating authority कौन सी है? मैंने बोला वही PML के अंदर वो उसके अंदर वाली प्रॉपर्टी ये ही आएगी. अब उसमें क्या आया है?
सुनिए, adjudicating authority on receipt of the report from the initiating officer shall issue a notice within a period of 30 days of the receipt of the report from the initiating officer. किसको नोटिस देगा? नंबर 1 टू बेनामीदार, टू द बेनामीदार उसको नोटिस इशू करेगा. नंबर 2 to the beneficiary, whoever is the beneficiary of that property. Number 3, person interested in that property, including the bank thereof, interested in that property. क्योंकि आपने mortgage की हो, कुछ की हो, interested in that property. Number 4, a person who has made a claim that I have a interest in that property. चारों को नोटिस मिल जाएगा. पता बेनामी प्रॉपर्टी बेनामीदार को तो देना ही है, बेनिफिशियरी भी पता लग चुका है. अब आया तीसरा, इंटरेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि जब उसने देखे डॉक्यूमेंट, ये देखे बैंक की कोई था, किसी और का इंटरेस्ट था, तो उसको भी नोटिस हो दे देगा. और किसी ने क्लेम कर दिया कि मेरा भी इसमें इंटरेस्ट है, किसी भाई ने कह दिया नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी है, मेरी भी उसमें है, मेरा भी उसमें राइट है, तो उसको भी नोटिस देगा. नोटिस दे दिया, 30 डेज के अंदर देगा. 30 डेज टाइम दिया जाएगा उसको जिसको नोटिस आया, बेनामीदार को, to reply to that notice. वो reply करेगा. After he has given a reply, उसकी reply दी जाएगी. You will ask him the documents, various other document, various information, document which he possess, वो आपने ले लिया. उसको फिर opportunity of being heard देंगे, adjudicating authority. उसके बाद adjudicating authority decide करेगी. कई बार होता है कि एक ही को बेनामी ट्रांजैक्शन का नोटिस दिया गया, लेकिन उसमें तो कई ओनर थे, कोई ओनर थे, कोई बात नहीं, वो नहीं भी दिया गया तो वैलिड नोटिस होगा. और वो ओनर चाहेंगे तो वो भी बीच में आ जाएंगे, नहीं तो उनको अगर बाद में पता लगे तो उनको भी नोटिस दिया जा सकता. अब उसने नोटिस दिया, अब डिसाइड करेगा विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ व्हेन इट वाज व्हेन द प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड. 12 महीने के अंदर अंदर वो डिसाइड करेगा इज इट ए बेनामी ट्रांजैक्शन और नॉट ए बेनामी ट्रांजैक्शन. If it is not a benami transaction, बात खत्म. If it is a benami transaction, वो order pass कर देगा under section 26. जब order pass हो गया तो 27 section लग जाएगा कि वो property confiscate हो जाएगी. Before confiscation, एक opportunity of being heard देनी पड़ेगी जिसकी property confiscate कर रहे हैं. और उसके बाद उस order के basis पे property confiscate हो जाएगी without any payment. Without any payment, property ले ली जाएगी without any payment. और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा एक असेसिंग ऑफिसर या किसी को ड्यूटी लगाई जाएगी, वो उसको एडमिनिस्टर करेगा कि वो पहले उसको प्रॉपर्टी की पोजीशन लेगा, फिर उसको ध्यान रखेगा. ये 26 सेक्शन में लिखा है. अब ये बेनामी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, आपकी प्रॉपर्टी ले ऑर्डर हो गया कन्फिस्केट कर. लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, आपके पास पावर है ट्राइब्यूनल में जाने के लिए, अपेलेंट ट्राइब्यूनल के लिए. अगर आप अपेलेंट ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब, तो उस केस में वो ऑर्डर अबेयंस में रखा जाता है. मतलब कन्फिस्केट नहीं करते, वो एडजुडिकेशन कर दिया है लेकिन प्रॉपर्टी इज नॉट कन्फिस्केटेड और इट इज केप्ट इन अबेयंस जब तक कि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर ना आ जाए. ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के आने के बाद फिर तो आपकी तरीका वही है, हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, उन्होंने तो ऑर्डर कर दिया और 90% फैक्ट का केस है तो वही केस खत्म हो जाएगा ट्राइब्यूनल के ऑर्डर में. लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, प्रॉब्लम ये है, अब ये अगर बेनामी हो गई तो क्या होगा, मैं आपको बताऊं. अब सवाल आ रहा है कि सेक्शन में जो ला रहा हूं वो ला रहा हूं चैप्टर 7 पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन. क्या कहता है चैप्टर 7? वेयर देयर इज ए पर्सन हु हैज कमिटेड डिफॉल्ट, क्या टू अवॉइड द पेमेंट, ही हैज कमिटेड ए डिफॉल्ट टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ड्यू or committed a default of this nature or to avoid the payment to the creditors, or he has committed a default under any law he has committed a default,
or committed a default for payment of statutory dues or default for payment of defaulter intention, in that case, he'll be liable for penalty and prosecution. कौन liable होगा? They said the liability will be on number 1, benamidar. Number 2, beneficiary. Number 3, पहले पानी पी लिया तमीजा साहब ने ये सोच के कि अब किसका नाम आने वाला है. पहला नंबर था पहला बेनामीदार के होगा, दूसरा होगा बेनिफिशियरी, तीसरा पर्सन हु इंड्यूसेस और अवेट्स दैट पर्सन टू गो फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन. हमारा क्लाइंट तो यही कह देगा, सर मुझे नहीं पता, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा था ये ट्रांजैक्शन ऐसे कर लो, तो वो भी जाएगा, उसको भी लगेगा, एक प्रोसिक्यूशन होगा. कितनी प्रोसिक्यूशन का टाइम है? मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर. मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर्स. एंड और नहीं है, एंड पेनल्टी which is 25% of the fair market value of the property on the date of benami transaction. देखिए 3 आदमी प्रोसिक्यूट होंगे, 3 आदमी को जेल जाना पड़ सकता है. 1, बेनामीदार. अगर ये प्रूव हो गया और ये बेनामीदार हो गया और प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गया, स्पेशल कोर्ट करेगा लॉन्च प्रोसिक्यूशन. पहला बेनामीदार, दूसरा बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी अगर आइडेंटिफाइड हो जाए तो बेनिफिशियरी, और तीसरा पर्सन हु ओबेट्स और पर्सन हु इंड्यूसेस दैट पर्सन जिसके टू गो फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन. तो केयरफुल रहिए, अपने आप को दूर रखिए, कोई ऐसी चीजों में मत पड़िए. अगर उसने स्टेटमेंट दे दी तो आप कहेंगे कैसे प्रूव कर देगा कि मैंने कहा. मैं मानता हूं कैसे प्रूव कर देगा, लेकिन एक चीज बता दूं, एक नोटिस कोर्ट से आ जाएगा और वहां पर कितनी घबराहट होती है ये तो आपको भी पता है. अरे एक 143(2) का नोटिस क्लाइंट का आता है तो हम कहते हैं क्लाइंट को, अरे क्यों घबराता है, मैं हूं ना. लेकिन 143(2) का नोटिस अपना आ जाता है तो आपको पता है 2 दिन नींद नहीं आती कि मेरा नोटिस कैसे आ गया 143(2) का, क्योंकि मेरे अपने बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, क्लाइंट के बारे में नहीं पता. अगर सम्मन्स कोर्ट से आ गए किसी के नाम पर तो वो घबराता रहेगा, चाहे बाद में छूट जाए, लेकिन बार बार कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना, वहां अपीयर तो होना ही पड़ेगा ना. तो ये प्रॉब्लम आती है, सो दूर रखिए. तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन मिनिमम 1, मैक्सिमम 7 एंड पेनल्टी तो लगेगी बेनामीदार को, उसको कितनी? 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू. सेकंड पॉइंट, अगर आपने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हियरिंग, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, तो भी प्रोसिक्यूशन है. मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 5 years. उसमें भी प्रोसिक्यूशन है कि आपको जो चिट्ठी आई, आपको नोटिफिकेशन नोटिस आया, आपको कहा डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आपको कहा ये इंफॉर्मेशन दीजिए, आपको कहा ये स्टेटमेंट दीजिए, आपने फॉल्स दे दिए, तो भी मिनिमम 6 months prosecution, maximum 5 years, and penalty, that is fine up to fine of 10% of the fair market value. ये चैप्टर 7 में लिखा है. किसी ने मुझसे पूछा क्या ये बेनामी लॉ ओवरराइड करता है बाकी सेक्शनों को, बाकी लॉ को? यस, बेनामी लॉ ओवरराइड्स ऑल अदर लॉ. बेनामी लॉ ओवरराइड्स ऑल अदर लॉ. फिर किसी ने पूछा कि क्या बेनामी में ट्रांजैक्शन हो तो अदर लॉ में नहीं होगी क्या? बिल्कुल गलत. सेक्शन 57 कहता है बेनामी लॉ इज इन एडिशन टू and not in derogation of any other law which is in force. मतलब आपके इनकम टैक्स में 68, 69, 69 A, B, C लगा दिया, वो तो चलता ही रहेगा. That is, बेनामी लॉ is in addition to. It is in addition to the other laws. It is not in derogation of other laws. ओवरराइड करता है, कोई और एक्शन कहीं थी वहां पर तो नहीं लिखा, वो ओवरराइड करेगा, लेकिन इन एडिशन टू है. तो मैं आपको बता रहा हूं ये खतरनाक है. सेक्शन 53, 54 जो मैंने बताया, अब प्लीज, बहुत बड़ी पेनल्टी है, बहुत बड़ा प्रोसिक्यूशन है
अगर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रूव हो गई। मैंने बेसिक चीजें बताई, 30 बताया, अथॉरिटी कौन होगी वो बने अभी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, उसको बता के मुझे क्या करना है। 7 सेक्शन से लेकर 30 सेक्शन तक तो 23 सेक्शन तक तो अथॉरिटी का नाम है। और एक और बता दिया, एक बार वो बेनामी ट्रांजैक्शन है तो प्लीज वो आप उसको बेनामीदार के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं कर सकते, बेनामीदार से वो रिकवर नहीं कर सकते, या बेनामीदार ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करने जा रहे हैं तो प्लीज, अगर उस पे बेनामी लॉ का नोटिस आ चुका है इनिशिएशन 24 में, तो आप अगर खरीदेंगे तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन मानेंगे, वो टेक ओवर कर सकते हैं। वो कहेंगे नो, दिस ट्रांजैक्शन इज नल एंड वाइड। केयरफुल होइए। मैंने जब उनको कहा ये आपने क्या कर दिया, मुझे क्या पता, मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं कि इसके ऊपर नोटिस इशू हो गया और वो भी 24/1 का नोटिस इशू हो गया। हाउ डू आई नो कि दैट नोटिस हैज बीन इशू? मैंने तो उनको बोला था अपने पोर्टल में डाल दो और लिख दो कि ये आदमी पे नोटिस इशू हुए हुए, ताकि हम देख लें कि यार ये प्रॉपर्टी कहीं पे नोटिस तो नहीं इशू हुआ। लेकिन अभी तक उन्होंने पोर्टल में डाला नहीं। लेट द बायर बी बीवेयर। कल कोई नोटिस इशू हो चुका है तो प्लीज नोट, वो क्या कहेंगे, इट इज नल एंड वाइड ट्रांजैक्शन। आपका पैसा भी फंस सकता है, नल एंड वाइड। बी केयरफुल व्हेन यू बाई एनी प्रॉपर्टी। चेकअप कर लीजिए कहीं ऐसा वैसा नोटिस तो नहीं है। पब्लिक नोटिस ही डाल दीजिए अखबार में कि भैया मैं प्रॉपर्टी है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अरे डिपार्टमेंट को आपको क्या पता पूरी इंडिया में प्रॉपर्टी कहाँ की है? आप दिल्ली में बैठे हैं, आप बॉम्बे की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपको क्या पता वहां नोटिस इशू हो गया कि नहीं हुआ? ये बड़ा ड्रेकोनियन टाइप ऑफ ए थिंग है। लेकिन मैं जो लॉ है मैं लॉ बता रहा हूँ, और लॉ कह रहा है कोई ट्रांजैक्शन करोगे आफ्टर दिस इशू ऑफ नोटिस तो वो नल एंड वाइड मानी जाएगी। और लॉ ये भी कह रहा है कि आप ट्री ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप वो भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें मैंने बेनामी लॉ में करानी थी। आई डोंट वांट टू डू स्पेशल कि भाई वो स्पेशल कोर्ट कैसे लॉन्च करेगा प्रोसिक्यूशन, ये तो वो करेगा, आपको पता लग जाएगा। और ये भी मैंने बता दिया कि अगर डेथ हो गई है तो लीगल एयर के अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। वो शिफ्ट कर जाएगा लीगल एयर के लिए, लीगल एयर को इनकॉर्पोरेट कर लेगी अगर किसी की डेथ हो गई है। और ये भी बता दूं, अगर कंपनी का केस है तो कंपनी और डायरेक्टर दोनों ये बेनामी लॉ में आ जाएंगे, उसके ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे। दोनों लायबल हैं प्रोसिक्यूशन के, क्योंकि कंपनी तो प्रोसिक्यूट हो नहीं सकती, तो उसके डायरेक्टर प्रोसिक्यूट हो। ये भी बता दूं, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं, उसके पार्टनर प्रोसिक्यूट हो। पार्टनरशिप फर्म को थोड़ी प्रोसिक्यूट करेंगे, उसके पार्टनर्स प्रोसिक्यूट होंगे। ये भी बता दूं, पेनल्टी चाहे फर्म दे दे लेकिन प्रोसिक्यूट तो पार्टनर्स ही होंगे। तो ये सब चीजें बताई। अब फिर क्वेश्चंस जितने आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, पूछिए जितने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अगर मेजर लेने हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं चैट में ले लूंगा। मैं देखता हूं सर, पिछली चैट भी तो आ जाएगी इसमें, कहां से शुरू करूं? तो पिछली चैट भी आ जाएगी, पुरानी चैट तो हटी नहीं होगी। Any amount from sale of Benami property converted into other asset and also remain Benami. Yes, proceeds of property will also be called Benami. आप तो सोच रहे हैं मैं तो बेनामी प्रॉपर्टी बेच चुका हूं, मेरा क्या कर लेगा? अरे भाई साहब, proceeds of that property is also Benami property. Up to how many layer क्या होती है? सारा जो प्रोसीड आपका है वो जितना भी जहां लगाया है वो आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएगी। If property from बेनामीदार cannot be taken back, then is it necessary to give show cause to beneficiary? Cannot be taken back. कैसे नहीं taken back होगा? सर उसके नाम पर है, वो जिसके पास भी पड़ी होगी उससे ले लेंगे। ये कैसे हो सकता है? सर एनी कैश होल्डिंग लिमिट अंडर बेनामी लॉ, बेनामी लॉ में कोई कैश होल्डिंग की लिमिट थोड़ी है यार। बेनामी में क्या मतलब है कैश होल्डिंग का? ए प्रॉपर्टी ऑक्शन बाय बैंक पर्सन ए पेड हाफ अमाउंट ड्यू टू लैक ऑफ अमाउंट, पर्सन बी पेड बैलेंस अमाउंट and sale deed is in the name of person B. Is this come into Benami property? नहीं sir, ये कैसे हो गया? Sir, whether is there any procedure to register regularization of Benami property purchase under bona fide? जी नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं है। भगवान को हाथ जोड़ते रहो कि आपके अगेंस्ट एक्शन लाओ। Sir, in case 40% share of a company held by shell companies, then whether covered under Benami law?
अरे मैंने तो बेनामी लॉ, मैंने आपको बोला इनकम टैक्स का अदर लॉ है, बेनामी में अदर आ जाएगा, वो पूछेंगे ये क्या है, तो ये आपने अगर कह दिया मेरा पैसा है तो बेनामी हो जाएगा। आप कहिए मेरा है ही नहीं, बेनामीदार का है। अगर किसी के बैंक में जमा है और एम्प्लॉय कहता है मेरा नहीं है, इनका है, आप कहते मेरा नहीं है, उनका ही है, तो बेनामीदार क्या अगर कह दे मेरा है तो फिर बेनामीदार को क्या होना है, सिर्फ वो पैसा जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। अगर बेनामीदार ने कह दिया मेरा नहीं है तो बेनिफिशियरी भी गया। अगर बेनामीदार कह रहा मेरा ही है तो इनकम टैक्स एक्ट में तो बदलेगा और तो कुछ नहीं है। अगर बेनामीदार कह दे ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पैसा है, ये बैंक में मेरा था, तो कम से कम 68 लग जाएगा, 69 लग जाएगा, लेकिन बेनामी लॉ तो नहीं लगेगा। वो कहेगा मेरा है, वो कहेगा कहां से आया, आप मेरे से टैक्स ले लो, 115B भी लग जाएगा, लेकिन वो बेनामी लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अगर बेनामीदार ने कह दिया मेरा नहीं है, इनका है, तो फिर आप भी साथ में गए। चलिए, द सेल कंसिडरेशन ऑफ द सेल शेयर shall be assessed under 143(3) of the income tax additionally made under 68। मैंने बोला ना, अगर आपने वहां कह दिया ये मेरा पैसा है तो फंस जाएंगे, तो फिर ये बेनामी लॉ में आ जाएगा, अदरवाइज 68 लग के चुप हो जाते। सर, प्रॉपर्टी इज बुक्ड prior to 1/11/2016 in the name of friend and not yet registered and possession not yet obtained from builder, whether any remedy to come out of this transaction। अरे आपने बिल्डिंग तो करी है, अरे उसके नाम कराई है और अभी आपके नाम में हुई है, उसको कह दो लोन दिखा दो उसको, वो लोन है, और लोन लेकर उसको वापस कर दे मेरे को, बात क्या है, लोन लेकर उसने खरीदी है, बाद में वो आपको ट्रांसफर कर दे। What is the time limit for initiating proceeding under Benami law from date of purchase of property by bona fide purchaser? कोई नहीं है, अरे कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब भी पता लगेगा। In demonetization proceeding, jeweler had given the name of people in whose name cash was put in the account and subsequently payment made to them against fictitious purchase of jewelry from them, and this covered under Benami law, बिल्कुल covered है Benami law। In case a property has become Benami, how it can be rectified suo moto before being discovered? जी नहीं, suo moto कोई rectify नहीं हो सकती, अपने आप कर लो, पता ना लगे तो अलग बात है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि वो केस में रीट्रांसफर अलाउड ही नहीं है। एक बारी बेनामीदार के नाम है, रीट्रांसफर अलाउड ही नहीं है बेनामीदार के नाम पे। सेक्शन 5(6) पढ़ लेना बेनामी एक्ट का, और 4 भी पढ़ लेना। आगे सर, जिस इनकम टैक्स एक्ट में टाइम पीरियड 6 साल है, क्या बेनामी में है? जी नहीं, यही तो ब्यूटी ऑफ बेनामी लॉ है, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। अरे 1988 का केस भी खोल सकते हैं, आप तो टाइम लिमिट पूछ रहे हैं। इनकम टैक्स में 6 साल है, बेनामी में कुछ नहीं। चलिए, हाउ वन में डिस्कवर नोटिस अंडर दिस लॉ इज इशूड एनी, मैंने तो बोला मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं कुछ कर नहीं सकता। न्यूज़पेपर में दे दो, थोड़ा सा जेन्युइन ट्रांजैक्शन लगेगी, नहीं तो कहते हैं नल एंड वाइड। If sale deed is registered and part of consideration received after 3 months, does it make any violence? No, no. Sale register हो तो पैसे आए ना आए हम क्या जाने, वो तो आ जाएंगे पैसे। You can sell on credit. Property transfer through relinquishment deed to legal heir. Further legal heir transfer of property, does it amount to benami? No, 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 no. If I purchase property in the AE का मतलब, if purchase property in the AE में समझा नहीं। Property purchased before issue of notice can be turned benami? जी नहीं, property purchased before the issue of notice cannot be turned benami। Sir, is there any limitation prior? अरे नहीं है भैया limitation। Sir, then how can we identify if any benami case is going on? मैंने तो ये बोला डिपार्टमेंट को, सर ये कर दो, लेकिन किया नहीं है। अब आप किस किस को लिख के भेजोगे कि मैं ये खरीदने जा रहा हूँ, कि नोटिस इशू है कि नहीं है? 24 बिना वो है बिना वो बोले ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, मैं कहाँ से बताऊं? इनिशिएटिंग ऑफिसर तो 24 है, तो मैं कहाँ से बताऊं? ये तो मैं भी कह रहा हूँ, दिक्कत है इसमें। इफ एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड 15 years बैक, इज इट कवर्ड अंडर एक्ट? मैंने बोला है कवर्ड है, क्या हो गया, कवर्ड है, लेकिन पेनल्टी प्रोसिक्यूशन 3 साल ही है, या फाइन है, हो सकता है फाइन से बच जाए, लेकिन पुराना 1/11/2016 से पहले प्रोसिक्यूशन सिर्फ 3 साल का था, या एंड और फाइन था। इंटरेस्ट फ्री लोन टू फ्रेंड कवर्ड इन एग्जेम्पशन फ्रॉम डेफिनेशन? यस, इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं। काइंडली पीपीटी शेयर। सर, ये पीपीटी क्या होती है? मैंने तो ये पीपीटी नहीं है जो मैंने लेक्चर दिया वो शेयर करो।
मैंने तो जिंदगी में कोई पेपर पर लिखा ही नहीं है, अपने हाथ में तो मैं रखता ही नहीं पेपर, तो पीपीटी क्या बनाऊं? मेरा कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन जो ये प्रेजेंटेशन है ये राजेश जी अपने आप डाल देंगे यूट्यूब में, या जो भी डालना है उनसे पूछ लीजिए राजेश जी क्या करेंगे. He purchased property in the name of parents, whether Benami or not. Yes, in the name of parent Benami. अपना नाम डाल दीजिए साथ में, तो बेनामी नहीं, नहीं तो बेनामी है. Sir, as you have said that while purchasing the property, it has to be assured no notice under Benami Act has been issued. मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम चली आ रही. Property acquired abroad from proceeds of Benami property. How will IO initiate property and confiscate property? भाई साहब ये कहीं नहीं लिखा कि वो नहीं कर सकता. हमारे यहाँ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हमारे यहाँ सब कुछ है, हमारे यहाँ टीटी है, उसके हिसाब से देखेंगे. प्रॉपर्टी परचेज फॉर बिल्डर बट रजिस्ट्री नॉट मेड ऑल्दो पोजेशन टेकन स्टेटस. मैंने आपको बोला अब आगे से तो रेरा लग गया है, अब तो कंप्लीशन के बगैर देगा भी नहीं. पीछे तो अगर आपने पोजेशन ले लिया है तो उस केस में अगर वो आपको मैंने बताया कि अगर वो उसने अभी रजिस्ट्री नहीं करी है तो दिक्कत आएगी, लेकिन ये 1 नवंबर के बाद तो रेरा लग चुका है, वो करेगा ही नहीं है. व्हाट रेमेडीज अगेन विद लीगल एयर? लीगल एयर कुछ रेमेडी नहीं है. अगर बेनामी ट्रांजैक्शन फादर की थी और वो उसकी डेथ हो गई तो लीगल एयर के अगेंस्ट एक्शन लेंगे. जिस इन केस ऑफ प्रॉपर्टी परचेज जॉइंटली विद स्पाउस 50% ईच बट पेमेंट मेड बाय हस्बैंड मोर देन हिज शेयर, नो प्रॉब्लम. बेनामी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेनामी में तो 100% पेमेंट आप देकर बीवी के नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. If some money has been passed over an above amount mentioned in deed, whether any implication of Benami law? सर ये तो आप ट्रांजैक्शन की नेचर बताएंगे तो बताऊंगा. इंटरेस्ट फ्री लोन मैंने बता दिया. Is this act a practical one? अरे प्रैक्टिकल नहीं, ये तो इतने एक्शन हो चुके हैं, आप तो प्रैक्टिकल कह रहे हो. ये ड्रैकोनियन लॉ है, छोड़ेंगे नहीं किसी को. If Benamidar give property to beneficial owner, it cannot be done. It will be treated as void. This transaction will be treated as void if Benamidar gives that property. Property purchased in daughter name but paid from father's bank, is it Benami? No. Any child बोला यार, आपने लेट ज्वाइन किया है शायद. अरे किसी भी चाइल्ड के नाम लीजिए, कोई बेनामी नहीं है, मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ भी हो. Any compounding procedure under Benami? No compounding. No compounding under Benami. A Benamidar give property to, मैंने बोल दिया ये नहीं हो सकता. गिफ्ट होगा तो वाइड होगी. Is there any increase in the value of property subsequently acquired or converted from Benami property? What would be the amount of Benami transaction? Will it include increased amount also? Sir, for amount की बात तो जो 25% पेनल्टी लगनी है वो उस दिन की लगनी है जिस दिन बेनामी थी, बाकी तो कन्फिस्केट हो जानी है. फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू करके क्या करना है? What area should we consider with regard to property to be safe in Benami transaction? अरे मैंने कहा सर आजकल खरीदते हुए पहले अंडरटेकिंग भी ले लो जिससे खरीद रहे हो कि तेरे को कोई नोटिस नहीं इशू हुआ या इस प्रॉपर्टी पे नहीं हुआ, अब अखबार में दे दो, नहीं तो डिपार्टमेंट से पता करने की कोशिश करो. अगर वो प्रॉपर्टी दिल्ली में है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर से पता कर लो ना, दिल्ली में है उसको लिखो कि उससे चेकअप कर लो कोई नोटिस तो नहीं इशू किया इनिशिएटिंग ऑफिसर में, क्योंकि हर स्टेट में एक ही तो है, जिस स्टेट की प्रॉपर्टी है वहां से इंक्वायरी कर लो. इफ बेनामीदार गिव प्रॉपर्टी टू बेनिफिशियल ओनर, कर नहीं सकता यार, कर ही नहीं सकता बेनामीदार. सर एज यू सेड प्रॉपर्टी परचेज बिफोर इश्यू ऑफ नोटिस कैन नॉट बी टर्न बेनामी. इट मींस लेटर इट फाउंड बेनामी डिपार्टमेंट कैन नॉट इनिशिएट एक्शन फॉर प्रॉपर्टी टेक ओवर. यस, मेरे से नहीं ले सकता. बेनिफिशियल ओनर को प्रोसीड पकड़ लेगा ना, बेनिफिट उसकी प्रोसीड्स पकड़ लेगा, लेकिन मेरे से प्रॉपर्टी नहीं ले सकता. वेदर सब रजिस्ट्रार इनकम knows about notice issued? No, sub register does not know. If Benami property give property to beneficial owner, it is treated nahi. Benami मैंने बता दिया. Is maternal grandson lineal descendant? Yes. Sir, if any transaction of any year is taken up in Benami, then why POA made and no registry of property before 1990 is not convert? अरे यार मैंने बोला POA का तो 1 नवंबर से पहले का है. Can Benami be applicable for bogus capital? Yes. If you say that it is my capital, if you say it is not my capital, 68 लग जाएगा, लेकिन बेनामी नहीं लगेगा. If बेनामीदार give property to beneficial owner, यार बार-बार एक ही चीज पूछ रहे हैं. He cannot do. बेनामीदार अब कुछ कर नहीं सकता, रीट्रांसफर कर ही नहीं सकता. बेनामीदार को करेगा तो void माना जाएगा. एनडी गुप्ता, if property is not benami, as I put my name,
क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है सर. If joint name entered before issue of notice, then is it corrective action? Further prosecution will not be initiated. जी नहीं, it is not a corrective action. आपने तो जब खरीदा था तब करना था. अब आपने joint name डाल दिया तो किस बात का हुआ? At the time of acquisition. What is my fault if my father had been Benami property and he expired? वाह, हम तेरे को कुछ थोड़ी कह रहे हैं, हम तो प्रॉपर्टी को पकड़ रहे हैं. तेरा तुम्हारा क्या फॉल्ट है? हम तुम्हें तो कुछ कह ही नहीं रहे. हम तो कह रहे तेरी जो प्रॉपर्टी फादर ने तेरे को दी है वो बेनामी है, वो ले लो. तेरा फॉल्ट क्यों? आपका कोई फॉल्ट नहीं है, बट फादर का फॉल्ट है तो प्रॉपर्टी का फॉल्ट है ना, वो बेनामी मानी जाएगी. You will not be prosecuted. No, you will not be prosecuted. Property will be confiscated. You will not be prosecuted. Property will be confiscated. Agricultural land on paper different and possession with other and no dispute filed whether Benami. ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, पूरा करिए. If some money had passed over and above amount mentioned in deed, whether any implication of Benami law में नहीं आती, implication income tax act में आई. Capital gain on sale of such property in whose name, on whose hand, brother or myself. अरे यार, जिसके नाम की प्रॉपर्टी है उसके नाम पे कैपिटल गेन होता है, उसके नाम पे कैपिटल गेन होता है. Sir, could you please clarify, can a beneficiary take defense of treating consideration as loan to बेनामीदार? सर, वो बेनामीदार ने अपने अकाउंट्स में क्या दिखाया है वो इंपॉर्टेंट है. आपने अपने अकाउंट्स में दिखाया है. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने थे, पहले आपने लोन दिखाया ही नहीं है, तो वो कैसे मान लिया जाए? पहले दिखाया है, ट्रांजैक्शन है, तो ठीक है. Sir, could you please clarify, can a beneficiary take defense of treating consideration? बता दिया मैंने. Has any prosecution been initiated? अरे हो रहे हैं सर, हो रहे हैं. अभी तो डिसीजन शुरू हुए हैं, prosecution भी start हो रहे हैं. If property purchased in joint name of self, wife and son as 1/3 each, however payment made by me, no, it is not Benami. It is not Benami. Sir, property will be kept by that Benamidar. It is finalized as Benami. अरे यार, मैंने बोला ना, ये तो उसका चला जाए. एग्रीकल्चर लैंड विद अदर नेम, ये समझ नहीं आया. पोजेशन 1, हु इज रियल ओनर एंड हु इज बेनामी. अगर पोजेशन आपके पास है तो आप तो रियल ओनर, आप तो बेनामी, आप तो हो गए ना. प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड एंड पेनल्टी ऑफ 25% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स्ट्रा विल बी लेविड. यस, प्रॉपर्टी भी जाएगी, 3 चीजें होगी. प्रॉपर्टी भी जाएगी, जेल भी जाएगा 1 साल से 7 साल, और 25% प्रॉपर्टी भी दी जाएगी. उसको कहेगा सबको ले जा, मुझे ही अंदर कर दे, मेरे पास तो है. लॉ है तो लॉ ही है, तो ड्रैकोनियन लॉ है, मैं क्या कर सकता हूँ. अभी तक और कुछ नहीं आया है. अगर कोई आया तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम चैप्टर क्लोज करें. ये देख लीजिए, अभी तक और नहीं आया. देखिए, कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है. लू में फिर दोबारा आ गया कुछ एक का सवाल आया है. सर ओजे सर. टू इंडिविजुअल नो, अरे सर, between two individual no books generally maintained if at the time of notice property. यार ये सारी बातें चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी चीज पे पूछनी है, यही पूछनी है. मेरे मुंह से क्यों निकलवाते हो? थैंक यू वेरी मच. ओजे सर. हाँ जी. I'm very fan of you, my dear professor. Actually, please. I want to ask one question, one query बोलिए. that relating to the individuals are having assessment in the family, joint family. Hello? Tell me. The individuals are having assessment since long back, 10 to 20 years. They are having their own source. Is it Hindu or divided family? No, this is a joint family in combined family. That is not in the individuals are having assessments. Separate assessments. Okay. They are showing each and every property in their name, every deposit in their name, every assessment they are paying the taxes. Is it treated as, if anything goes wrong, is it treated as Benami? It depends. If the source cannot be explained, if it is held as a Benamidar, if it is held by you, consideration given by you, where is the problem? If it is held by, if taken by father given to you, where is the problem? But if it is held by you, but consideration provided by some other person, then only do it. Then, and if the consideration provided by brother, but it is your name is also there, still it is not Benami. Still it is not Benami. Thank you very much, sir.
Thank you very much, sir. Thank you. sir. Welcome. Thank you. Next. Deepak Any Deepak other? Ostwal ji, ask your question. Deepak Ostwal ji. आइए Deepak Ostwal ji. आइए अपनी शक्ल दिखाइए वो दबा के. सिटी सर, सिटी एक नाम है सिटी का, पता नहीं क्या है. हेलो, एनी क्वेश्चन नाउ? ये Any 5 question from anyone? no questions sir, all are satisfied, I think so. Sir, thank you. A will not be satisfied. Initiating officer will never be satisfied. You can be satisfied, I can be Thank you. satisfied. But you have to satisfy. Thank you, sir. Thank you Sir, very much. Take हमारे care. Thank you very much, sir. Thank you. Stay healthy, take सर care. सर एक मिनट सर, हमारे MS गोयल साहब भी हैं, फॉर्मर चेयरमैन. वी आइए वेलकम सर. मधुसूदन जी, थैंक यू वेरी मच. कम कर आओ ना- ना मधुसूदन गोयल जी. आप तो MS कह रहे हैं, हम MS नहीं कहते, मधुसूदन जी कहते हैं. नाउ ओवर टू धमीजा जी सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स. धमीजा जी, हेलो. धमीजा जी तो आराम कर रहे थे. आ रही है सर, बोलो. हेलो. we thank our dear Ahuja sir very much for such a nice celebration with no questions are left and clarifying the position of the law. We hope in future also he keep guiding us. Thanks a lot. Thank you very much, sir. But please share this And thank deliberation you to- because somebody wanted PPT. There is no PPT. Share this, whatever if you have recorded to the others also. Thank you. Fair All the enough. best. Take Right. care. Please take care. Thank you. Thank for leading you. the meeting. Thank you. Take care. All the best. Thank you. Thank you.